ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट मैं कह रहा था कि रुदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा रे गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उससे जो ऑब्जर्वेशन उसने निकाली थी ना, और उस ऑब्जर्वेशन को यूज करके जो उसने एटम का मॉडल बताया था, इट वाज ट्रेमेंडसली गुड। एक बार बताओ, तुम लोगों ने तो पढ़ा ही हुआ है ना उसको, 9th क्लास के अंदर किया, रुदरफोर्ड का मॉडल कौन क्या था और क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे उसके। तो एक काम करते हैं, वी स्टडी द रुदरफोर्ड मॉडल, वी जस्ट कम टू द कंक्लूजन, राइट, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो व्हाट ही डिड, ही टुक अ गोल्ड कॉइन, after taking the gold foil, he has taken a source of alpha particle emitter. Let's say this is lead chamber. And he has kept a radioactive source there. These radioactive sources have a tendency to give alpha rays or alpha particle, and instead is bombarding alpha particle to that gold foil. The gold foil is approximately 1 to 10 micrometer in width. Now, micrometer means very, this 10 to minus 6 meter. Micrometer means 10 raised to power minus 6 meter. Now, understand that he has covered this whole setup with zinc sulfide screen or any analyzer. He has applied some zinc sulfide screen here also. He applied some zinc sulfide screen here also. Why? Because I like it. Right. Now, understand that what he did, he bombarded alpha particles on a very thin gold foil. Right. Now, what he observed? What was the observation he actually? A board visible नहीं है क्या? विजिबल है सर। विजिबल है सर। Okay. Listen. Sir, can you write big? I'll write very big now. Alpha ray, zinc sulfide screen, right? Radioactive source, one to 10 micrometer gold foil. Lead chamber. Okay. अभी ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ कि ऑब्जर्वेशंस क्या मिले उसको। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी कोई करता है ना, so obviously he will find out certain observation which is happening in that particular experiment. Based on that observation, he will conclude certain things. अरे लेड चैम्बर यार, लेड का बना हुआ चैम्बर, लेड बहुत डेंसर एलिमेंट होता है, वो अलाउ नहीं करता कोई और रेडियो एक्टिव रेस तुम्हारी तरफ आए। सपोज करो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, अभी सुनो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। Listen, हुआ क्या था, बड़ी ऑब्जर्व, you observe that most of the alpha, देखो zinc sulfide screen एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल अगर कोलाइड करता है ना, तो it shows glow. Now understand that what do you observe? You observe large amount of glow here.
few amount, like a very less amount of glow here, very few amount of glow here, and once in a while I'm getting some glow here. Now understand what exactly happening. He found out that most of the alpha ray particles are passing through the coil undeflected. That is that they are falling straight, and I'm getting large amount of glow in this region. Few alpha particle is undergoing deflection at smaller angle, like getting it. Now this is a straight line. This is an angle theta. That theta is smaller angle. Right. Very few alpha particles have a deflection at smaller angles. So I get some glow here. Right. Very few alpha particles have a deflection at larger angles. Very few. That means the amount of glow which I'm getting here is much higher than the amount of glow I'm getting here. Larger angle means this angle is a larger angle. So very few alpha particles undergoing deflection at larger angle. And according to our NCERT, this is retracing its path. It is known as 180-degree deflection. If it is like 180-degree deflection, right? He observed that 1 out of 20,000 alpha particles. He said that 1 out of 20,000 alpha particles undergoing 180-degree deflection. But actually speaking, when he performed this experiment, the data was roughly 1 out of 1,80,000. But as we have to follow NCERT, you will follow this. Getting it? So 1 out of 20,000 alpha particle undergo deflection at by 180 degree. The actual thing was this. So you understood that. This is the observation he actually encountered. They have faced. Glow, green glow. So you got large amount of glow here, then here, green glow. But a gold foil is consisting of atoms, right? It will tell me the structure of an atom. See, Rutherford has done the experiment with gold foil, right? A gold foil is the most malleable element which is available in periodic table. So you can beat that element into a very thin sheet. That is why the thickness of the gold foil which I'm getting is 1 to 10 micrometer. Moreover, gold is an atom which is like having quite higher mass. It is not bending before it reaches. I am showing it that way. I'll let you know everything. Just give me some time. This experiment was done in vacuum. This experiment was done in vacuum, obviously, so that other particles should not interfere. Okay. Sir, audio not clear. अरे सही में audio clear नहीं है क्या? Sir, clear. क्लियर है. आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes sir, आ रही है सर, क्लियर है. Yes. Clear है ना? Sir, which radioactive source? अरे you can use any radioactive source, polonium, radium, anything. Yeah, thank you. चलो आगे चले बेटा. इसको हटाओ, पहले लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन. उसके बाद तुमको ढंग से बताता हूँ हुआ क्या. हटाओ इसको. वेरी गुड, लिख लिया ना. ओके ओके. So write down observation. Write down observation. देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट है ना, सबसे पहले कोई भी लोग, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई भी साइंटिस्ट कोई भी है जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, सबसे पहले क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन नोट करेगा, राइट? तो द ऑब्जर्वेशन which he got here,
हाँ they found out that most of the alpha rays, most of alpha ray particles pass through the foil undeflected. Okay. Second observation he made that few alpha particles undergo deflection at smaller angle. Now, next observation what he made that very few alpha particles undergo deflection at larger angle. And last but not the least, 1 out of 20,000, actually 1 out of 1,80,000 alpha particles undergo deflection by 180 degree. One out of 20,000 alpha particles undergo deflection by 180 degree. Now, what he concluded from these 4 points, ठीक है? पहले लिख लो, उसके बाद बात करते हैं. सर लेकिन आपने फिगर में नहीं, मैंने 1 आउट ऑफ 20,000 लिखा था और 1 आउट ऑफ 1,08,000 लिखा था. मैंने कहा था एनसीईआरटी में 20,000 होता है और एक्चुअली में 1,80,000 था. I said 1 out of 20,000 alpha particles और एक्चुअली में 1 out of 1,80,000 alpha particles undergo deflection by 180 degree. I'll let you know everything, just तुम इसको लिख लो, ठीक है? अभी तो ये ऑब्जर्वेशन है, अभी तो कंक्लूजन करना है. कंक्लूजन के बाद एटम का मॉडल पता लगेगा, रदरफोर्ड ने जो देखा. अभी लिखो हैव पेशेंस, मेरे को तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं क्योंकि तुम लोगों ने ना ये मॉडल पहले ही पढ़ रखा है. I just want to just know like what kind of thought process you guys have applied here. Done. It shows that most of the atom is empty. अच्छा अच्छा अभी इसको हटाओ. Everyone. हाँ सर. Yes. Actually देखो उसने अल्फा पार्टिकल काउंट कैसे किए, ये सब कैसे हुआ. देखो पहले टाइम में ना बहुत सारे एनालाइजर्स आते थे, तो he would have used one of the analyzer to count the number of alpha particles. ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो, वो हमारा लुकआउट नहीं है.
हमारा लुकआउट कुछ और है। उसने एक एनालाइजर लिया होगा जो सर्कुलर वे में घूम रहा होगा एंड उसको अप्लाई कर दिया होगा कंप्यूटर के थ्रू, काम हो जाएगा। इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। सर ग्लू, अरे जो भी पार्टिकल अगर जिंक सल्फाइड से कोलाइड करता है ना, तो कोलिजन के बाद जिंक सल्फाइड एटम में थोड़ा डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ग्लो आता है। वो लाइट एब्जॉर्ब करता है रीजन से। तो अभी इसको हटाऊं तो हाँ, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल काउंट कर रहा है, उसे एनालाइजर कह सकते हैं। Why there are different values of 1 second? I didn't get it. Why there are different values of alpha particle in deflection? What do you mean by different values? I didn't get it. मैंने कहा एनसीईआरटी में इतना दे रखा है तो तुमको ये फॉलो करना है। एक्चुअली में इतना हुआ था तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इतना हुआ था। गेटिंग इट? या ओके नाउ ओके, अभी अभी मुझे ये बताओ कि उस ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर कैसे दिया। देखो, हमें ना अभी ये पता है कि एटम दिखता कैसे है रफली, क्योंकि बोर ने पता है क्या बोला था। या या फॉस्फोरेसेंस का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर तक ग्लो रहेगा, जब कोलिजन ना भी हो तो थोड़ा टाइम तक ग्लो रहता रहता वहां। ओके सुनो, हमको पता है कि अब क्या होता है कि हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या होता है हमें पता है, अभी पहले नहीं पता था, ठीक है। एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है। इस न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन। नाउ अंडरस्टैंड दैट कोई भी एटम ना इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है। दैट मॉडल वाज गिवन बाय बोहर, गेटिंग रुदरफोर्ड आल्सो। नाउ लिसन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, दैट इज नियरली 10⁻⁻15 मीटर, और जो रेडियस ऑफ एटम है ना, दैट इज 10⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे बहुत छोटी जगह पे मेरे पास एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इसके आसपास लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करूँ तो मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक दिस। I have large amount of electrons which are like revolving around us. ये देखिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एटम का हम लोगों को पता है। पहले नहीं पता था जब रुदरफोर्ड ने ये मॉडल निकाला था, अब तो हमको पता है ना। अरे राम, लिसन यार,
ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, राइट। हमको पता है कि इसके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा मास है इसके अंदर, राइट। और मुझे पता है कि अब ना ये जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये हमको पता है अब, जो मॉडल ऑफ एटम हम फॉलो करते हैं। So this is nothing but a model of atom which we are following right now. ठीक है, now understand that ये जो न्यूक्लियस का रेडियस है, that nucleus radius of nucleus is nearly 10 to -15 meter, और जिस एटम का रेडियस ना that is nearly comes out to be -10 meter। तो ये हमको पता है, और हमको ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस है ना उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। So I have negative charge revolving around the nucleus. Like, getting a point? हाँ, तुम एक्चुअली एटम नहीं देख सकते बट एनालाइज तो कर सकते हो जो बात निकली है। तो हमको इतना तो पता है ना कि एटम ऐसा है। अभी तक, अरे बेटा, अभी तक तो तुमको यही पता है ना, अभी तो क्वांटम नहीं पढ़ा ना तुमने। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, राइट, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे रुदरफोर्ड कैसे बताएगा बोर मॉडल के लिए? तभी तो मैं उसको जीनियस बोल रहा था कि बिना उसको इस आइडिया के उसने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाल लिया। समझो ना उस चीज को, पहले समझो, इतना तो तुमको पता है ना। ठीक है, अब मैं रुदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस भाई साहब ने कुछ भी ना पता होने के बाद भी सारा काम किया। देखो, जब तक रुदरफोर्ड ने अपना काम शुरू किया था ना तब तक न्यूट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ जे थॉमसन ने अपना वो मॉडल दिया था, कौन सा, वो प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। सर क्वांटम टॉपिक केम में आता है, फिजिक्स में, दोनों में आता है, दोनों में आता है। ठीक है, हम दोनों में ही करेंगे, बट थोड़ा ना रुक जाओ। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हाँ बेटा। अरे ना, ओके, एक काम कर लो, पहले सीख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Aryan, come with your Zeal ID. ओके, अभी ये समझ लो कि न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर होता है, एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर होता है। इतना अभी हमको पता है, रुदरफोर्ड को नहीं पता था, उसने निकाला। ठीक है, एक बात बताओ, तुम लोग ये बोलते हो कि most of the alpha ray particles, see observation हमने क्या करी, most of the alpha ray particle pass through the foil undeflected. Few alpha particle undergo deflection at smaller angles, very few alpha particle undergo deflection at larger angles, and 1 out of 20,000 alpha particles undergo deflection by 180 degree. That is the observation which we have made. Correct? इतना ही किया ना हम लोगों ने अभी तक। Now, तो तुमने ये पढ़ा है पहले भी कि as most of the alpha ray particle is passing through the foil undeflected, that means most of the space in an atom is empty. Agreed कि बहुत सारी स्पेस जो है एटम के अंदर खाली है क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एटम से पास कर जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड।
इतना पढ़ा है ना तुम लोगों ने? यस सर। अब सुनो, मैं रुदरफोर्ड को जीनियस क्यों मानता हूँ, थोड़ा समझना है। इमेजिन करो, नहीं पहले सुन लो, अभी ना इतना मत सोचो, पहले सुनो। जब तक पूरी चीज नहीं सुनोगे ना तब तक नहीं समझ पाओगे। थोड़ा समझो कि मैं एडमायर क्यों किया रुदरफोर्ड। सपोज करो मैं एक न्यूक्लियस हूँ, मैं अगर न्यूक्लियस हूँ ना, तो मैं अभी लेट्स से खारगर में हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक जाऊंगा, 10 नहीं ज्यादा, लाइक 15 किलोमीटर तक दूर गया। उस 15 किलोमीटर के बाद मैंने ना वहां से एक सर्कल ड्रॉ किया मेरे अराउंड। एक मिनट यार, सर हम लोग लाइट की स्पीड नहीं देख सकते हैं, हम कितना भी मैग्नीफाई करें डार्क मैटर से देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अरे भाई, व्हाट्स द पॉइंट राइट नाउ ऑफ टॉकिंग दिस थिंग? अरे सुनो, आई एम डिस्कसिंग हियर न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल, राइट? ऑर्बिट्स। अभी लाइट मैटर डार्क मैटर नहीं, अभी कुछ नहीं। सुनो, मैटर डार्क मैटर छोड़ दो, अभी थोड़ा सुनो यहाँ पे। अगर मैंने बोला अगर मैं न्यूक्लियस हूँ तो यहाँ से ना मैं 15 किलोमीटर दूर जाऊंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा अपने अराउंड, तो वहां से तुम्हारा एटम शुरू होता है। सो अगर मैंने इतना तुमको डायमेंशन बताया ना, तो समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम न्यूक्लियस then I'll go like 15 kilometer away from here and I'll draw a circle around me, वो एटम हो। तो देखा जाए एटम का साइज न्यूक्लियस से साइज से बहुत बड़ा। अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is equal to 4/3 pi radius of atom whole cube divided by 4/3 pi radius of nucleus whole cube। रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 होल क्यूब डिवाइड बाय 10⁻⁻15 होल क्यूब। ये हो जाएगा 10⁻⁻30 बाय 10⁻⁻45। ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻15। मतलब जो एटम का वॉल्यूम है वो 10⁻⁻10⁻15 टाइम्स ज्यादा है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। तभी मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके अगर सर्कल खींचूंगा ना अपने अराउंड, सो फ्रॉम दैट सर्कल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। ठीक है? अब ना एज अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। एक स्टूडेंट की तरह अगर मैंने ये सारी चीजें पढ़ी ना, तो मुझे ये बोला गया कि अगर तुम न्यूक्लियस हो और तुम्हारे से 15 किलोमीटर दूर पे अगर तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास एटम शुरू हो जाएगा। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि मतलब मैं न्यूक्लियस, मेरे पास मास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मेरे से यहाँ से लेके उस 15 किलोमीटर तक बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा। सो ये अगर न्यूक्लियस है और ये अगर एटम का वो है और फिर यहाँ से एटम स्टार्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो अल्फा रे पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, करेक्ट? तो अगर अल्फा रे पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कुछ नहीं हुआ उसको, तो बहुत ज्यादा स्पेस जो एटम के अंदर है ना खाली है। मेरा एक क्वेश्चन है भाई साहब, 15 किलोमीटर दूर से जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो बीच में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, अगर वो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है कि खाली एटम है? तो खाली स्पेस है यार। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम पे मेरे पास क्या है, पूरा नेगेटिव चार्ज। तो अगर एटम यहाँ से शुरू कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको बीच में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिलेगा ना, तब जाके वो पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन्स है ना उधर, एम्प्टी कैसे हुआ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
दूसरा चीज सुनना ध्यान से, सारी ऑब्जर्वेशन, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसने कहा अल्फा रे पार्टिकल इज अंडरगोइंग डिफ्लेक्शन at a smaller angle because there exists a positive charge at the center of an atom which repel this alpha particle, because alpha particle is positively charged. I have nucleus which is also positively charged, तो alpha ray positively charged है, nucleus भी positively charged है, तो alpha ray particle जब यहाँ पे पहुंचेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, वाजिबा तुम कह रहे हो अल्फा रे पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है ना और बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों उसको रिपेल ही करना है? मेरी बात समझ में आ रही है कि उसने कहा था देयर इज द लॉट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो डिफ्लेक्शन एट स्मॉलर एंगल। मैं ये कह रहा हूँ कि यार यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, बेटा वन सेकेंड पहले सुन लो, बाद में क्वेश्चन पूछना, पहले सुन लो, ठीक है, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ठीक है। पहले इतना सुन लो, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ से एटम शुरू होता है, तो सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल, उसने कहा अल्फा पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल और एटम के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये अल्फा पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बाय द हेल्प इट इज गेटिंग रिपेल्ड बाय दिस। मास का कुछ मैटर नहीं करता, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर सकता है तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जो बीच में उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। नाउ व्हाई इट इज नॉट अट्रैक्टिंग इट, व्हाई इट इज जस्ट गेटिंग रिपेल्ड? नहीं, just think about it and then we'll move ahead, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था, उसने कहा that as very few alpha particle undergo deflection at larger angle like this and very 1 out of 20,000 alpha particles undergo deflection by 180 degree, it means that the amount of positive charge, he said that very few alpha particles undergo deflection by larger angles like this, and few, that is 1 out of 20,000 alpha particles undergo deflection at larger angle, like by 180 degree. Right now, it means that the volume occupied by this positive charge is negligible as compared to the volume of an atom, and the overall mass of an atom is concentrated at the nucleus of an atom. तो उसने ना सिर्फ इन 3 ऑब्जर्वेशन से एटम का स्ट्रक्चर दिया। देखो यार, अगर ये 3 ऑब्जर्वेशन मैंने करी होती ना तो मुझको ये एटम का स्ट्रक्चर नहीं आता। उस भाई साहब ने तीनों ऑब्जर्वेशन करी और इन तीनों ऑब्जर्वेशन से उसने पूरा एटम प्रोड्यूस करके दे दिया। तुम खुद सोचो ना, मेरे डाउट जेन्युइन है। यहाँ से लेके अगर 15 किलोमीटर दूर से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ आ रहा है और मैं पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे और उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है ना, तो भाई साहब को अट्रैक्ट करके उड़ जाना चाहिए ना। भैया अल्फा पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, चार्ज अट्रैक्ट हुए, अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस बन के उड़ जाएगा। लेट इट बी एट कांस्टेंट मोशन यार, होने दे कांस्टेंट मोशन पे। नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है क्या कांस्टेंट मोशन पे रहेगा? अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो मतलब मूवमेंट की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वन सेकेंड, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो रिपेल भी क्यों कर रहा है? सर एटम गेट आयोनाइज्ड बाय अल्फा पार्टिकल। अरे तो अलग ही लेवल पे बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो अलग सीन है। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग बाइंडिंग फोर्स, नहीं रे, सुनो, इतना समझ आया, अब आगे चलते। सुन लो, बहुत स्पेस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्सेंट्रेट नहीं है। वन सेकेंड, किसी ने कुछ बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सुनो,
चलो एक बात बताओ, ढंग से बताना, क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे? इज इट पॉसिबल फॉर एनी पॉजिटिव चार्ज? नो सर। नो सर। इग्नोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाहर की बात करते हैं। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? नो सर। नहीं ना। टू पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट अट्रैक्ट, नॉट पॉसिबल। once again, इज पॉसिबल। सुनो होता कैसे, अगर ना तुम एक बड़ा सा स्फीयर लो, उस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज डालो, एक बहुत छोटा सा स्फीयर लो और बहुत पॉइंट मास लो, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज में ना, पॉइंट मास में ना बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डालो। तो तुमने क्या किया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे स्फीयर में डाला और कम पॉजिटिव चार्ज एक बड़े स्फीयर में डाला। तो इस बड़े स्फीयर में बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है जो उसके थ्रू स्प्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज लिया। इस चीज को समझना, दैट पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन या फिर पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन या नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ चार्ज ओनली। ये चार्ज का फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन होता है चार्ज इस टू सरफेस एरिया का। कितने सरफेस एरिया पे कितना चार्ज अवेलेबल है। अगर सपोज करो बहुत छोटे सरफेस एरिया पे बहुत ज्यादा चार्ज अवेलेबल है ना, तो वो जो छोटा सरफेस एरिया है ना, वो जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि कोई भी चीज आयोनाइज हो जाती है। इट आयोनाइजेस द थिंग वेरी फास्ट, राइट? तुमने कभी वैन डी ग्राफ जनरेटर देखा है? कभी म्यूजियम में गए हो तो वहां पे एक स्फेरिकल वो रहता है, मेटल का एक बाउल टाइप बना रहता है, उसके ऊपर हाथ रखते हो तो बाल खड़े हो जाते हो, उसे वैन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। पता तुमको? यार ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, कौन है? पता है तुमको? वो वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है। अब समझना, वो वैन डी ग्राफ जनरेटर पे जो चार्ज आता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से आता है, और पॉइंट चार्जेस क्या करते हैं, उसको आयनाइज कर देते हैं। तो इट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज टू साइज रेशियो। तो जितना ज्यादा चार्ज जितने कम साइज पे होगा ना, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज द फंक्शन ऑफ नॉट चार्ज, इट्स द फंक्शन ऑफ चार्ज टू साइज रेशियो। तो अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बिगर एटम, a bigger sphere, I have a positive charge on a very smaller sphere। तुमको पता है क्या, sphere एटम से बनता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के पास जितने भी आइटम्स है ना, और उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, धीरे धीरे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे आ जाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली सोचना होगा क्या, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो इस साइड बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर इस साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इस साइड क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस साइड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ज्यादा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Negative charge is very close to this positive charge. This positive charge is away from this positive charge. तो net attraction होगा कि net repulsion होगा? अगर ये positive charge इस electrons के पास है और ये positive charge इस positive charge के दूर है, तो net attraction होगा कि net repulsion होगा? Attraction होगा, net attraction। net attraction होगा। Very good, so proud of you। मतलब attraction और repulsion is a function of charge is to surface area। Agreed? Say yes।
Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Ah, Yes, sir. very good. Wait. Now understand what exactly is going on. How we concluded a lot of things. ये न्यूक्लियस है और लेट्स से एटम है, क्या देंगे? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे वॉल्यूम पे, और इस जगह पूरा नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे एटम, इतने छोटे रीजन पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बड़े से रीजन पे सराउंडेड है। तो मुझे बताओ, चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया, तो नेगेटिव चार्ज जो स्प्रेड है लार्जर अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे, वो मैटर करेगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज जो सराउंडेड है बहुत छोटे सरफेस एरिया पे, वो मैटर करेगा। किसका ज्यादा अट्रैक्शन या ज्यादा रिपल्शन होगा? अभी एक चीज समझ लो, सुन लो, राइट? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंड यू नो व्हाट, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1/100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, नियरली। तो मतलब जो स्पीड रहती है वो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड स्पीड पे रहता है। तो खुद सोचो, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है? नाउ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। मुझे पता है ये पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो गया इतने बड़े सरफेस एरिया पे, और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एक छोटे से सरफेस एरिया पे जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो मुझे बताओ, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पास कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा मैटर करेगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा मैटर करेगा, कि पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन ज्यादा मैटर करेगा, कंसीडरिंग दैट नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेडेड इनसाइड अ बिग सरफेस एरिया। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटे सरफेस एरिया पे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? हाँ, अंडरस्टूड दैट पॉइंट? अंडरस्टूड? तो सोचो सोचो, फिर से बोलो, मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर जा रहा है ना, तो मेरे पास न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी जगह पे, और इस न्यूक्लियस से यहाँ तक जो सरफेस एरिया बहुत बड़ा है ना, वहां पे मेरे पास पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, ऐसा। गेटिंग इट? तो नेगेटिव चार्ज का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज का जो सरफेस एरिया वो बहुत छोटा है। तो कौन ज्यादा मैटर करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा मैटर करेगा जो कि बड़े सरफेस एरिया पे, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मैटर करेगा जो कि छोटे सरफेस एरिया पे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन किसका ज्यादा मैटर करता है, इलेक्ट्रॉन्स का कि न्यूक्लियस का? अरे एवरीथिंग इज मैटर यार। अभी हम इस लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैटर की बात करेंगे, राइट? हाँ, तो न्यूक्लियस, सुनो, ओ पॉजिटिव चार्ज मैटर, हाँ, लिसन 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 लिसन, ध्यान से सुनना। ये पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस है, और यहाँ से लेट्स से नेगेटिव चार्ज शुरू होता है। अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करता है, ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइक दिस, इट मूव्स फास्ट। एक बताओ, ये नेगेटिव चार्ज इसके आसपास मैटर नहीं कर रहा है अभी, ठीक है? तो मान लेता हूँ ये नेगेटिव चार्ज यूजलेस हो गया मेरे लिए। तो ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। अब खुद सोचो ना, अगर मैं न्यूक्लियस उससे 15 किलोमीटर दूर से एटम शुरू होता है, जो अल्फा पार्टिकल 15 किलोमीटर दूर से एटम के थ्रू निकल रहा है, क्या मैं उसको रिपेल कर पाऊंगा? खुद सोचो, अगर मैं न्यूक्लियस हूँ और 15 किलोमीटर दूर से एटम स्टार्ट हो रहा है, और जो अल्फा पार्टिकल मेरे और उस 15 किलोमीटर में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बीच में आ रहे होंगे जो कि मुझसे बहुत दूर है, तो क्या मैं उसको रिपेल कर पाऊंगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है सर, बहुत दूर है, नो नॉट पॉसिबल। तो अंडरस्टैंड दैट ये मैं हूँ और ये 15 किलोमीटर, तो ये स्टार्ट हो रहा है 15 किलोमीटर, समझना, ये मैं हूँ और ये 15 किलोमीटर है, तो पास हो रहा है 15 किलोमीटर।
ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया, 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 मैटर नहीं करता क्योंकि वो बहुत दूर है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल पास से गुजरेगा तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से गया तो क्या होगा, जस्ट ऊपर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा, बट ये मूव कर रहा है ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो जैसे ही बहुत फास्ट स्पीड से पहुंचाना वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा तभी उसने बोला, रुदरफोर्ड ने बोला कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है। अब खुद सोचो कि अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बड़ा होता, सपोज न्यूक्लियस का वॉल्यूम बड़ा होता, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये न्यूक्लियस है, समझना, जैसे जे थॉमसन ने बोला था ना पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, मैं मान लेता हूँ ये न्यूक्लियस है, समझना, मैं मान लिया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर इधर आएगा ना पूरे एटम में, अगर पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल आएगा इस पूरे एटम में ना, तो जैसे ही ये आया तो क्या स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा कि लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा, खुद सोचना, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, राइट, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया, तो क्या स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा कि लार्जर पे जाएगा, लार्ज, और पता है क्या, हाँ हाँ सुनो, लार्जर पे जाएगा मतलब, और एक ही एटम है बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी सेंटर पे, दोनों अल्फा पार्टिकल ना आपस में सेंटर, दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में सेंटर पे कोलाइड कर रहे हैं, जब ये सेंटर पे कोलाइड करता है ना तभी ये 180 डिग्री जाता है, अदरवाइज 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है। 180 डिग्री डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब कोलिजन हेड ऑन, तो होगा क्या, जब अल्फा पार्टिकल सेंटर से पास कर रहा है इधर, और एटम जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके बीच में ये भी सेंटर पे है, तो सेंटर कभी ये मूव करेगा टूवर्ड सेंटर ना, तब जाके रिफ्लेक्ट करेगा बाय 180 डिग्री, टकराएगा नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा, गेटिंग अ पॉइंट। अब सुनो, न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा क्यों है, बिकॉज रुदरफोर्ड ने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो जो साइज है ना न्यूक्लियस का वो इतना छोटा है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल उसके पास जा पा रहे हैं, तभी जाके वो लार्जर एंगल और 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। बात समझ में आई? तुमने अभी कहा था अगर बड़ा सा एटम होता, कौन है ये, S012, नाम बताओ बेटा अपना, S012, अरे SS012, बस नहीं, अरे आवाज आ रही है? चलो बहरहाल क्वेश्चन ये था कि सर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, कोई मुझे बताएगा कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बोलो। हाँ कि सर बड़े से सरफेस एरिया पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज चार्ज इज टू सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन सरफेस एरिया का फंक्शन होता है, इसलिए बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो भाई साहब रिपेल ही करेगा, हाँ वो चार्ज यूजलेस हो जाएगा हमारे, यू अंडरस्टूड दैट? चलो अब ना मेरी बात सुनो, ये हाँ वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड दैट, मैं क्या कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे बताया उसने, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल लार्जर एंगल पे और 1 आउट ऑफ 1,80,000 अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब साइज जो उस पॉजिटिव चार्ज का होगा ना वो बहुत कम होगा, तो उसने कहा था कि ओवरऑल चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, गेटिंग इट, वेरी स्मॉल पॉइंट। अभी लास्ट, क्योंकि
एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से डिफ्लेक्ट बैक करता है 180 डिग्री। उसने बोला था कि मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। अब उसने ये कैसे बोल दिया कि पूरा मास ऑफ एटम न्यूक्लियस पे है? ऐसे कैसे बोल दिया? उसको कैसे पता लगा पूरा मास एटम का न्यूक्लियस पे? वो तो पॉजिटिव चार्ज स्टडी कर सकता है ना, मास पे कैसे आ गया? ए न्यूट्रॉन भी बोल दिया था उसने, पूरा मास बोला था यार। पॉजिटिव चार्ज मतलब मास नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ प्रोटॉन्स का मास होता है, बट उसने बोल दिया था कि पूरा मास ऑफ एटम ना, उसने बोल दिया था पूरा मास ऑफ एटम न्यूक्लियस के अंदर होगा, उसने बोला था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मास पे कैसे पहुंचा वो यार? मैं मान सकता हूँ चार्ज पे, मान सकता हूँ सब चीज पे, सर because the अगर nucleus remains steady after collision। वेरी कोलिजन तो हो ही नहीं रहा, रिपल्शन हो रहा है। सुनो, टेल मी, मैंने क्या किया, इस मार्कर को ना यहाँ से छोड़ दिया। अब ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने जब मार्कर को यहाँ से छोड़ा तो क्या हुआ? मार्कर को क्या हुआ? अरे क्या हुआ मार्कर, क्या हुआ जब मैंने यहाँ से जब छोड़ा? वो गिरा। क्या हुआ मार्कर को? फ्री फॉल, अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया ये ना फ्री फॉल कर रहा है, तो ना अर्थ ना, अर्थ 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 हमारी जो मदर अर्थ है ना, इस पे हमारी जो मदर अर्थ है ना, वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, राइट? तो हमारी मदर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी तो अपनी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ना, because according to third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So when this marker is getting attracted by earth, so this mark by some force F, suppose वो F पे force लग रहा है, ठीक है, एंड ये भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा सेम फोर्स से, तो ये तो नीचे गिर रहा है, अर्थ को नहीं ऊपर आ रही, अर्थ को दे दे भाई, तो रह दे नीचे मत गिर, मैं ऊपर आ जाता हूँ। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। हाँ, तो अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मार्कर कम होगा, एंड मार्कर का मास बहुत कम है तो मार्कर ही मूव करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट, मैं एक अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, या फिर मैं एक न्यूक्लियस हूँ, एप्रोप्रिएट दिखेगा, और ये अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल मेरी तरफ आ रहा है तो ये मुझे रिपेल कर रहा है, बिकॉज मैं भी पॉजिटिव चार्ज हूँ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मैं भी उसको रिपेल कर रहा हूँ बाय द सेम फोर्स। गेटिंग इट? ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे रिपेल कर रहा है, मैं भी उसको रिपेल कर रहा हूँ बाय द सेम फोर्स। एग्रीड? एग्रीड? हाँ सर, हाँ। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। अच्छा पीछे कौन किया? मैं किए? Alpha अल्फा particle. पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब मास, अल्फा पार्टिकल, मास Alpha particle. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा है हाँ नहीं कर रहा हूँ, पीछे रिपेल नहीं हो रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल के अभी। हाँ कौन? अगर ये मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसको रिपेल कर रहा हूँ, ये मुझे रिपेल कर रहा है, पीछे ये जा रहा है, तो मास किसका ज्यादा, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा? न्यूक्लियस Nucleus, nucleus. किसका ज्यादा? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर न्यूक्लियस, अगर यही अल्फा पार्टिकल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर यही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल में नहीं मारा होता ना, ये अल्फा पार्टिकल को एल्यूमिनियम फॉल पे मारा होता। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, कितना होता है? 27। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4, तो इतना फर्क नहीं है। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर Yes, sir. एल्यूमिनियम का मास है 27, अल्फा पार्टिकल का मास है 4।
Okay. तो अल्फा पार्टिकल का मास है 4, एल्यूमिनियम का मास है 27. इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, पता है क्या? जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा ना एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, खुद भी रिपेल होगा क्या? एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस भी रिपेल कर रहा है तो न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा। इतना भारी नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को पूरा बैक कर दे, तो होगा क्या? दोनों ही चीजें बाहर मूव करने लगेंगी। तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस को इट नॉक्स ऑफ वेरी नाइसली, कहेंगे। तो गोल्ड का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है एल्यूमिनियम से और बहुत भारी होता है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल पीछे आता है, गोल्ड का न्यूक्लियस नहीं जाता। अंडरस्टूड? अगर वो एल्यूमिनियम होगा ना तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस को बाहर फेंक देगा। बात समझ में आई? हाँ। Now that is why I admire Rutherford. With this observation, he actually gave a very nice structure of an atom, which was, I guess, not possible for a normal layman. एक नॉर्मल आदमी का इसको रिड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं था, until unless वो इतना वेल वर्स्ड हो सारी कैलकुलेशन से कि क्या क्यों हो रहा है सब निकालने के। Rutherford एक ऐसा आदमी था जिसने सिर्फ इन सिंपल ऑब्जर्वेशन से इतना सब कुछ सोच लिया। It got very nice. Okay, now what is the conclusion he gave? Now the conclusion what Rutherford gave is, as most of the alpha ray particles passed through the foil undeflected, it means that most of the space in an atom is empty. Second, few alpha particles undergo deflection by smaller angle. It implies that there exists a positive charge at the center of an atom, and the volume of that positive charge, that is known as nucleus, is negligible as compared to the volume of an atom. Third point, right? As few alpha particles, I'll do one thing, third point later on write down. First you write down these 2 points fast. Write down these 2 points fast. I didn't get your question. First you copy this, I'll let you know. First you copy this.
Okay. Ultimately, what was exactly the atomic structure? Very good, Shreyans. I'm so proud of you. Sir, one more. Can you explain why electron does not? Because electrons, no, they are spread in a very big size, big volume. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड है ना, तो चार्ज टू सरफेस एरिया पूरा नेगेटिव चार्ज का कम हो जाता है. तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय दैट इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर आफ्टर दैट. तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज छोटी जगह पे और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज बड़ी जगह पे, तो बड़ी जगह वाला यूजलेस हो जाता है. हाँ, बिकॉज मैंने बोला ना कि अट्रैक्शन जो है और रिपल्शन जो है वो फंक्शन होता है चार्ज टू सरफेस एरिया का. जितना सरफेस एरिया छोटा होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है. तो पॉइंट चार्जेस हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे बड़े चार्जेस. हाँ बेटा बोलो. सर हम्म आपका वो सेकंड पॉइंट में हम्म. इट इम्प्लाइज दैट देयर, वो कौन सा वर्ड है वो समझ नहीं आया था. अच्छा भाई ऐसे ही पूछ लेता है वो. इट इम्प्लाइज दैट कहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एटम. ऐसा ओके सर, समझा. थैंक यू. हाँ बेटा. listen listen. The movement, right, of alpha particles, like he actually filtered all this positive charge to go and attack over it. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल डाला. अगर बीटा पार्टिकल होता तो क्या होता बताता हूँ. रुक जा, फर्क नहीं पड़ता उससे. हटाओ मैं इसको, पहले खत्म कर. ठीक है. अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लेते तो क्या होता बताता हूँ. ठीक है. Third point, as few alpha particles as very few alpha particles undergo deflection by larger angle, and 1 out of 20,000 alpha particles undergo deflection by smaller angle. 180 degree. It implies that एक मिनट रुको. It implies that the overall mass of an atom is concentrated at the nucleus of an atom. जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो पूरा उस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड. That was the thing given by Rutherford. And what is the final atomic model? The structure of atom. Okay.
An atom consists of positive charge a positive charge once again. An atom consists of positive charge which is concentrated at the center of an atom known as nucleus. At nucleus, the overall mass of an atom is concentrated. And the volume of nucleus is around the radius of nucleus is around 10⁻⁻15 meters. The negatively charged, I want space here, right? Shall I rub that point? Yes. Yes, sir. Yeah. The negatively charged electrons are revolving around the nucleus in orbits slash shell slash planetary motion where the electrostatic attraction between the nucleus and electron will provide the centripetal force for revolution. So now, Rutherford model of an atom is also known as planetary model of an atom. Rutherford model of an atom is also known as planetary model of an atom. He was the first person who was talking about the orbits or shell. It was not Bohr. It was Rutherford who actually introduced the concept of shells and orbits. Okay, done. Yes, sir. Very good. Yes. So that was a model given by Rutherford. Structure of an atom.
Okay. Now, now understand that he has given one of the statement as the electrons are revolving in circular motion around the nucleus, where the centripetal force of attraction is given by electrostatic force. Now, have you ever observed any circular motion? कभी भी पूरा circular motion observe किया है? पता है क्या? जब भी कोई दो particles के बीच में, for example, this is sun and this is earth. सुनना ध्यान से. This is sun, this is earth. Now earth is attracted towards the sun by gravitation force. ये जो gravitation force है ना, जो sun की towards लग रहा है, towards the center, तो वो जो force है gravitation force, वो काफी है इस earth को circular motion provide करने के. किसके around? sun के around. तो ये जो force towards the center exist करता है ना, इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो किसी भी सर्कुलर मोशन में ना देयर विल बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और वो जो फोर्स है ना वो कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है. इस केस के अंदर अर्थ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. पहला पॉइंट. अगर सपोज करो मेरे पास एटम है, एटम के अंदर भी मेरे पास एक न्यूक्लियस है जहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ अंडरस्टैंड दैट ये इलेक्ट्रॉन भी ना न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है लाइक दिस. अगेन आई हैव अ फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. इस फोर्स को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स होता है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. Electrostatic force. So I have a force which is electrostatic force. Now this force is acting towards the center. Again, जब center के पास attraction है ना, I am getting this circular motion. तो हमेशा ना circular motion के लिए मेरे पास एक force होना चाहिए which should act towards the center, और उस center force को centripetal force कहते हैं. Centripetal force provide किया जाता है by different forces. इस केस के अंदर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स. इस केस के अंदर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ रदरफोर्ड को ये बात मालूम थी कि अगर कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स रिस्पांसिबल होता है सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के. अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मींस द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्ट हुआ है तो मतलब मैं उसको कौन सा फोर्स बोलूंगा? उसको मैं कौन सा फोर्स बोलूं? Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस के अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिबिट कर रहे हैं? Nucleus. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? Electrostatic. एग्जैक्टली. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिस्पांसिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के. तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. Have I made my point clear? Yes. Agree? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Uh, okay. Where were we? Drawbacks of Rutherford. Just mute yourself. Drawbacks of Rutherford model. Right. Now understand that according to Maxwell theory of electrostatic, what is said? Any charge, he said that any accelerating charge particle will emit energy in the form of electromagnetic radiation. कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग मोशन शो करता है ना, इट शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर ये चीज सही है तो न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है ना, तो ये भी एक्सेलरेटिंग मोशन शो करता है. अगर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन तो है ही. क्योंकि उस एक्सेलरेशन के फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करते करते ना इसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए विद इन 10⁻⁸ सेकेंड. तो 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. बट ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है रुदरफोर्ड के मॉडल के अंदर. वी विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन. तो रुदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. सॉरी टाइम कैसे मालूम पड़ा कि 10⁻⁸ सेकंड्स में मैक्सवेल ने अरे यार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था, ठीक है, वो बोर ने निकाल लिया था. और क्या नाम है, मेरे को रेडियस पता है, तो बाय द कैलकुलेशन मुझे टाइम पता लग जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं होती. तुम जब 12th क्लास में पहुंचोगे ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे तो पता लग जाएगा कैसा है. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. रुदरफोर्ड कैन नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. आई गेस इधर वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है और बोर मॉडल शुरू करेंगे. ठीक है. हेलो. Okay, sir. चलो टेक केयर. बाय. Bye, sir. Bye, sir. हाइपोथेटिकल यूनिवर्स मैं भेज देता हूँ.
ठीक है, चलो ठीक है, आई विल टेल यू एवरीथिंग. ओके, अनूप जी कहाँ हो? बोलिए सर। हाँ सर, ठीक है, हेलो, हाँ रोहित है सर, मैंने होस्ट बना दिया मुझे. श्योर श्योर श्योर.